Let me share the screen. Okay, I'll switch off my video. Actually, today's lecture is important important lecture. That is why I was willing that everybody should attend this lecture, because I am going to today what I am going to do is I am going to take up this real example, and I am going to formulate the governing equation. Not formulate the governing equation. Governing equation will be there with us. We are going to formulate. We will do the discretization from scratch, and the discretized equation I will take into MATLAB or Octave Online, and I'll show how the numerical schemes work from scratch today. So today is the most important lecture, I could say. Anyways, so here is my problem definition. So this is my problem. The problem is called Taylor-Coet, sorry, not Taylor-Coet, it's Coet flow arrangement. It's Coet flow, C-O-U-E-T-T-E, Coet flow scenario. So what this Coet flow scenario is all about is we have two infinite sized plates in X. So infinite plate size in X and Z direction. So it is having infinitely long, it's kind of infinitely long plate is there. So this is infinite here, this is infinite here in X and Z direction. So X and Z are here. So the plate is spanned throughout. Not only at top, bottom we also have a plate. This is also an infinite plate. Okay, and this is how it is defined. So we have infinite size plates, two plates will be there, and the upper plate, what I am going to do is I am going to move this upper plate, infinitely sized plate, with some u velocity, which is equal to 40 meters per second, let's suppose, and we have a fluid in between. This is the fluid region that is trapped between these two plates with infinite domain in X and Z direction, but not infinite in Y direction, because in Y direction we have a plate spacing, that plate spacing h. Let's suppose this plate spacing h is 0.04 meters. This is small, okay. And now we want to actually what our aim is to, when this upper plate is going to move with certain velocity, so, and this plate is at no slip condition, so there are no velocities at the bottom plate molecules. So what I would expect is I would expect a velocity profile that should be generated at any cross section, whether it is here, or anywhere in Y direction. It should uh, look something like this at steady state. It should look something like this. Okay, it should look something like this. Okay, although if we talk about the transient case, the flow transiently, so if we talk about transient cases, if we don't talk about steady case, so transiently what it would look like, it would start from this initial condition, then it should go something like this, then it should go something like this, and eventually at steady state it should achieve this profile. Okay, so let me go and start formulating it. So this Taylor-Coet flow, let's suppose this is an one-dimensional domain in Y direction.
So I'm going to discretize. So this is my y domain, which I'm going to discretize, and I should have a value of u at all sorts of y's and all times. This is what our aim is to find. Okay, and yes, so this is y is equal to 0, and this is y is equal to, let's suppose spacing between them is h or l is 0.04 meters. Okay, and okay, the governing equation reads as when you apply Navier-Stokes equation, proper Navier-Stokes equation, and you can actually get this governing equation. And I mean, this I could give this as a homework, that how the governing equation has been derived from Navier-Stokes equation, full Navier-Stokes equation, with proper assumptions. So you would end up with, if you take y momentum equation, ignoring pressure, you would end up with this particular equation: dou u by dou t is equal to mu times dou 2u by dou y square, and this is our generic partial partial differential equation, which we have already talked about so many times. Okay, this should look something like this, isn't it? Something like this, this particular guy over here. So this is a generic parabolic PD. Now I'm going to take help from what we have learned so far, and we have learned that we can apply certain schemes, parabolic schemes, in order to discretize this particular governing equation in this y domain. Okay, so let me first discretize it. Okay, so let's suppose this is my ith node, this is my ith node, this is my I minus 1th node, and this next one is my I plus 1th node. So this is how in generic sense I am going to discretize my domain, y domain, and also in time domain I will have, let's suppose this is my nth time step. So next time I will have n plus 1, next time I have n plus 2, and so on. This is how I am going to discretize my time domain. Also, the spacing between these two grids, I plus 1 and I, or any two spatial grid, is delta x, and delta x I will take 0.001 meters, let's suppose, for the time being, and the time discretization I will take delta t is equal to 0.002 seconds. This is how I am going to set my diffusion number. Okay, so let's first discretize in certain scheme. So what scheme should I follow? Okay, I should follow FTCS, forward in time, central in space, the usual FTCS scheme. Let's see, and we will take care of diffusion number, that it should be less than half, and this will work eventually, and we'll see in MATLAB also how it works. So in FTCS scheme you can write u of at any ith generic ith node at n plus 1 minus u at any ith node nth time step divided by delta t is equal to mu times. So this mu is, okay, again this mu is the kinematic viscosity of this fluid. The fluid property, and which I will be taking something 2.17 into 10 to the power minus 4 in appropriate units, probably meter square per second, if I'm not wrong, and rest of the things I have already given. So this u is 40 meter per second. I'm going to move this plate, and this is at 0, and the spacing between this is this much, and discrete dx and dt I also have mentioned, and mu also I have mentioned. So it is a well posed problem now. So now the discretization of the spatial
domain is being discretized with central in space, so this I am going to do with this I plus 1 nth time step minus 2ui nth time step plus ui minus 1, okay, and divided by delta x square. Okay, fine. So this is my unknown. Okay, one more thing I want to tell is I didn't talk about the boundary conditions. Okay, boundary and initial conditions. I should talk boundary and initial conditions also. The boundary conditions are what? So at y is equal to 0, there are no fluids are moving, but at y is equal to how much distance? 0.04 meter, or the spacing between them, it should have, the molecule should have the velocity of 40 meter per second. That is what we have mentioned in our problem. This u is because the molecule will stick with the upper plate and it will move along with it. Okay, so the boundary conditions reads at y is equal to 0. So u of 0 comma at all the times is equal to 0. At y is equal to, let's suppose this is h, so u is at h comma all the time it should have 40 meter per second. This is how your boundary condition will be defined. So there are two boundary conditions needed for second order derivative of the spatial discretization, but for temporal discretization we need one initial condition we need. So this initial condition reads as u at at all y's internal nodes, at initial time t is equal to 0. So at t is equal to 0, everything should be 0. This is what our boundary and initial condition would read. With this boundary condition, I am going to march in time and space. Okay, let's see. So, so u I n plus 1 is equal to, I am going to write u I n, this is my known, plus nu times delta t divided by delta x square, which makes my diffusion number, and which is multiplied by ui plus 1 nth time step minus 2 ui nth time step plus ui minus 1 nth time step. So this particular equation I am going to put it in my MATLAB code, and I am going to iterate it, and let's see what happens one by one. Okay, so just notice here these things. So in MATLAB I can actually point out these ith and I plus 1th node, but I cannot point out these old time steps and new time steps. So what I'm going to do is I'm going to define these uns with old u, and this also, and this un plus 1 with new u. Okay, both u will be same in some sense, but the only thing is once I compute the new u, I will replace my value with old u. This is how I am going to iterate with time and space. So let me open my MATLAB. So I will also do in Octave also, but Octave the thing is, one second. The Octave the plotting capability is slightly less, and here I want to show you some sort of animation, how the flow is being developing.
Okay, am I audible properly? Yes, sir. Okay, so let me share my another screen from my desktop because it is not installed in my Surface laptop. So let me, are you able to see my MATLAB? Yes, sir. Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, cool. So side by side, just I want you guys to just keep remembering this particular equation and let me start coding in MATLAB. So let me, what I should do is I can actually make things, okay, fine. So every MATLAB code should start with CLC, uh, clear all and close all. Okay, and let me save that, Control S. Let me save this particular guy, uh, maybe empty20, your batch. Save. Yes, sir. Okay. Okay. So first I have to define my define what mu, right? Mu. So mu I am going to define what I told. My mu is 2.17 e raised to the power minus 4. That is what I have defined. So let me run this code and let's see what happens. So see in right hand side. So you guys know what MATLAB is all about. So or should I tell you from everything from scratch? What is what is what? Or you guys know before? You guys know something? Yes or no? Yes, sir. Okay, cool. So this window is essentially my script will be there, and right hand side there is a workspace in which your variables are defined. Left hand side you will have the directory folder, and which in that directory how many files are there, and this command window where if the error some error comes, it will be thrown over here, and if it is not, it will be shown here. Um Fine, let's see if mu is being defined or not. So mu has been defined as 2.17 10 to the power minus 4. It has been defined properly. Okay, now let's define our uh, h spacing. Spacing between the plate h is equal to 0.04 meters. So I'll tell that these are in meters. In meters. Okay, so whenever I write something after percentage, it will be commented, it will not be executed. The only execution will happen from h is equal to 2.014. Okay. Okay, next thing I will write is I am going to discretize my domain delta y. Okay, so this delta y, okay, I am sorry, I am really sorry. So let me define this dy as dy square, not dx square. Okay. Although both means same, I mean the physically means same, but we should be careful. This since this is d2y dy square, so I should take delta y square, and my delta y should be this much, not delta x. Okay, this should be. This is how I'm going to define. Sorry. Fine. So dy is equal to how much I have told. So let me, what I have to do is I have to just give me one minute.
So let me parallelly open this chapter also, so that you can side by side you can see this. Fine. सर हाँ बोलिए। सर ये जो म्यू के बाद आपने स्पेस छोड़ा है और इक्वल टू के बाद स्पेस छोड़ा है वो छोड़ना वो मैंडेटरी जरूरी नहीं है। होता है? नहीं नहीं नहीं, वो मैंडेटरी नहीं है। वो एक्चुअली कोडिंग करते वक्त ये थोड़ा ध्यान रखिए ना कि थोड़ा एक एस्थेटिक लुक भी आए, देखने में भी अच्छा लगे। वो मेरे ऊपर है, हमको वैसा पसंद है, बट ज़रूरी नहीं कि आप वैसा करें। ओके, तो यहाँ पे छोटा सा ही दिख रहा होगा, लेकिन दिख रहा होगा। इफ समथिंग ऐसा कर देते हैं थोड़ा सा छोटा। ओके फाइन, अब दिख रहा है। ओके, होप करते हैं थोड़ा दिख रहा होगा। dy dy हमारा कितना मैंने लिया है, सो ये dx मैंने लिखा है, dx इज इक्वल टू dy है, क्योंकि y डायरेक्शन में मैंने डिस्क्रिटाइज किया। सो 0.001, लेट्स सपोज 0.001। सो दिस इज माई सेमीकोलॉन परसेंटेज, दिस इज माई y डिस्क्रिटाइजेशन। सो इतने छोटे छोटे नोड्स हम डिस्क्रिटाइज करेंगे dy से। ओके, dy हो गया मेरा। अब मेरे नंबर ऑफ नोड्स मेरे कितने होंगे यहाँ पे, ठीक है, वो कैसे दिखाएंगे? सो नंबर ऑफ नोड्स को n से डिफाइन करते हैं, n इज इक्वल टू, सो व्हाट आई विल डू इज, आई हैव नॉट डिफाइंड, ओके हाँ, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल डू h स्पेसिंग डिवाइडेड बाय डिस्क्रिटाइजेशन dy प्लस 1 वुड बी माई नंबर ऑफ नोड्स। आप करके देख लीजिए, ठीक है। सो हम इसको अभी रन करा के देखते हैं क्या आ रहा है मेरा। ओके, सो रन कराने में मुझे क्या दिख रहा है, h इज जितना मैंने डिफाइन किया उतना है, न्यू है, dy जो है उतना है, n 41 नोड्स बन के आ जाएंगे हमारे, ठीक है, ये 41 नोड्स बन के आ गए। ओके फाइन, सो n 41 आ गया। देन आई हैव टू डिस्क्रिटाइज माई टाइम डोमेन, सो dt I'll take something around, I've already decided some small numbers, 0.002. So this is my time discretization. सर हाँ सर n इज इक्वल बोलिए। टू h बाई dy प्लस 1 जो लिया है वो क्यों लिया? हाँ 1 इसलिए लिए हैं, आप करके देखिए। अगर मेरा डोमेन, अगर लेट्स सपोज मेरा 100 स्पेसिंग 100 रहता, मैं 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर का मैं गैप रखता, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने आते, इंक्लूडिंग लास्ट नोड? एक ज़्यादा आता ना? करके देखिए आप, टोटल अगर जोड़ेंगे तो, इसलिए मैंने किया है। करके देखिए खुद से, ठीक है। एक ज़्यादा आएगा, टोटल 11 नोड आएगा अगर जीरो से डिफाइन करें। अगर पहला नोड से अगर गिनती शुरू करें तो 11 नोड आ जाएगा ना। टोटल 10 नोड नहीं आएगा, 10 उसके बीच का स्पेसिंग होगा, पर नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, एक ज़्यादा रहेगा। यस करके सर। दिखाएंगे, आप यस समझ सर, रहे हैं ना? तो इट्स सिंपल मैथ्स और कुछ नहीं यस है। सर। नहीं होगा तो फिर हम दोबारा बताते हैं, बट अभी इसको बीच में अभी रोकेंगे नहीं, क्योंकि एक मोमेंटम चल रहा है हमारा, ठीक है। सो इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई ज़्यादा उसमें नहीं है। अभी मेन जो सोचना है, अब यहाँ से सोचना है ना। अब हम क्या करेंगे, आई विल डिफाइन माई यू न्यू मतलब नेक्स्ट टाइम स्टेप पे, ये मेरा यू आई, ये वाला जो n+1 है मेरा, यू आई n+1, ये नए टाइम स्टेप पे जो मेरा यू है वो ये न्यू रहेगा मेरा, ठीक है। सो यू न्यू हम एक वेक्टर बनाते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक वेक्टर बनाएंगे। वेक्टर इन द सेंस हर नोड पे मेरा एक वैल्यू होगा यू का, यू न्यू का, और वो डिफाइन होगा ZEROS, जीरोज। स्टार्टिंग में चूंकि मेरा इनिशियल कंडीशन जीरो है, सारा जीरो है, तो सारा हम जीरोज रखेंगे। और जीरोज कितने नोड पे, सो कैपिटल N नोड्स पे। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन आई रन दिस कोड। सो मेरा एक यू न्यू एक नया वेरिएबल बन के आया, ओके। और आई एम सॉरी, ये मैट्रिक्स बन गया। सो n क्रॉस 1 मेरा बनना है, हम एक वेक्टर बनाएंगे, आई एम सॉरी, लेट्स रन दैट।
ओके, नाउ यू न्यू इज 41 क्रॉस 1, इट मीन्स एक वेक्टर बन के आएगा। और लेट्स, ये मेरा टॉप प्लेट है, लेट्स सपोज, सॉरी ये मेरा बॉटम प्लेट है, क्योंकि मेरा i इज इक्वल टू 1 ये है, i इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 ऐसे चलता जा रहा है, और ये i इज इक्वल टू 41 है। ठीक है, तो ये सारे नोड्स पे u की वैल्यूज मेरी 0 है स्टार्टिंग में। ठीक है, ये डिफाइन मैंने कर दिया अभी। ठीक है, बट अभी तक मैंने बाउंड्री कंडीशन नहीं डाला, तो अब मुझे क्या करना है, बाउंड्री कंडीशन डालना है। सो यू न्यू का मेरा पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट विल ऑलवेज बी 0। व्हाई? बिकॉज मैंने यहाँ डिफाइन किया है कि मेरा जो बॉटम प्लेट है वो मूव नहीं कर रहा है, तो ये हमेशा 0 रहेगा, बट टॉप प्लेट मेरा 40 से मूव करेगा। ठीक है, सो ये मेरा बॉटम प्लेट है, बॉटम प्लेट बाउंड्री कंडीशन। ओके, यू न्यू, यू अंडरस्कोर न्यू, मेरा जो लास्ट वाला नोड होगा, ओके, वो हमेशा मेरा 40 मीटर पर सेकंड रहेगा। ठीक है, ये चीज़ मेरा बाउंड्री कंडीशन सेट कर दिया। ठीक है, ये मेरा अपर प्लेट बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो जैसे ही रन कराते हैं, देख रहे हैं कि मेरा फर्स्ट नोड तो यू 0 है, बाकी तो 0 है ही, वो अभी मार्च करेगा, पर लास्ट नोड मेरा 40 हो गया। ठीक है, अभी तक एक्सप्लेन मतलब हम कर पा रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? ठीक है, अब इस वेक्टर को हम, ये जो न्यू एक वेक्टर बना, उसको हम लोग आइटरेशन में डालेंगे। ठीक है, आइटरेशन का लॉजिक थोड़ा, फिलॉसफी थोड़ा ये है कि हमारा जो ओल्ड और न्यू जो वैल्यू आता है वो कब तक मुझे आइटरेट करना है, तो उसका एक फिलॉसफी ये है कि हम एक एरर डिफाइन करेंगे, और वो एरर क्या करेंगे, ओल्ड और न्यू को घटाएंगे, और ओल्ड और न्यू के बीच का जो एरर होगा वो एक थ्रेशोल्ड से अगर कम हो जाएगा तो लूप से बाहर आ जाएगा और मुझे वैल्यू थ्रो कर देगा। ऐसा हम फिलॉसफी रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मेरा लूप चलना शुरू होगा। सो लेट्स लूप हम शुरू करेंगे। सो लूप में हम क्या करेंगे, वाइल लगाएंगे, वाइल लूप, वाइल। ओके, उससे पहले वाइल हम बोलेंगे एक एरर होगा, कोई भी एक एरर हो, वो मेरा एप्सिलॉन से जब तक बड़ा था, एप्सिलॉन से, EPSILON, एप्सिलॉन से जब तक बड़ा रहेगा तो वाइल के अंदर ही चलेगा, और जैसे ही छोटा हो जाएगा लूप से बाहर आ जाएगा। बट आयरनी ये है कि अभी तक हम एरर डिफाइन नहीं किए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक एरर डिफाइन करेंगे, स्टार्टिंग मतलब इनिशियलाइज करेंगे। सो एरर हम कोई बड़ा नंबर रखते हैं, लेट्स सपोज 1। ओके, एप्सिलॉन जो है एक छोटा नंबर रखेंगे, बहुत ही छोटा नंबर, ताकि हम मान के चले कि मेरा चीज़ें कन्वर्ज कर गई हैं। तो एप्सिलॉन हम रखेंगे 1e⁻³ मतलब 10⁻³ हम टॉलरेंस रखें। ओके, और हम आइटरेशन जो चलाएंगे, आइटरेशन को भी हम इनिशियलाइज कर देंगे, मतलब ये मेरा 0th आइटरेशन था, अब मेरा आइटरेशन बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ITER इज इक्वल टू ITER +1, मतलब मेरा आइटरेशन, ये जस्ट मेरा एक काउंटर रहेगा जो हमको बताता रहेगा कितना आइटरेशन चल रहा है, दैट्स इट। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें हर बार हम क्या करेंगे, एक यू ओल्ड रहेगा मेरा, उसमें यू न्यू हम डालते जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हम डालते जाएंगे। अच्छा, ये हम कब तक डालते जाएंगे, एक मिनट, ये हम कब तक डालते जाएंगे, तो ये हम इंटरनल नोड्स जितने हैं सबके लिए डालेंगे। ठीक है, और बाकी जो अपर और लोअर प्लेट है वो तो फिक्स है मेरा बाउंड्री कंडीशन से, बट अंदर वाले प्लेट्स जो है वो आइटरेट होते रहेंगे। सो फॉर, यहाँ पे एक लूप, एक और अंदर में एक और लूप चलाएंगे, फॉर i इज इक्वल टू, सो मेरा जो वेक्टर है कहाँ से कहाँ तक मेरा इंटरनल नोड्स है, तो फ्रॉम 2 to n-1 तक है ना, 40 तक, 2 से 40 तक है वही आइटरेट करेंगे, बाकी तो मेरा फिक्स रहेगा। सो फ्रॉम 2 to n-1 तक ही हम आइटरेट कराएंगे। अब हम ये वाला एल्गोरिथम लिख देंगे, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला ग्रीन वाला जो मैंने लिखा है। ठीक है, अब ये ग्रीन वाला यहाँ पे जाएगा, तो ग्रीन वाला ऐसे जाएगा कि हम लिखेंगे u_new, जो मेरा वेक्टर होगा उसके ith एलिमेंट में, ith एलिमेंट मतलब जब 2 होगा तो सेकंड एलिमेंट में, जब ये 3 होगा, ये फॉर लूप चलेगा तो थर्ड एलिमेंट में, वो सेव करके रखता जाएगा, लेकिन ये नेक्स्ट टाइम स्टेप पे लिख रहा है। ठीक है, ये नेक्स्ट टाइम स्टेप पे, और वही यू पुराने टाइम स्टेप पे यहाँ पे लिखेंगे, यू
ith नोड के लिए प्लस हम डिफ्यूजन नंबर भी यहाँ डिफाइन कर देते हैं, रुक जाइए, डिफ्यूजन नंबर भी डिफाइन कर देते हैं। सो डी से हम डिफाइन कर देते हैं डिफ्यूजन नंबर। सो डी इज इक्वल टू व्हाट, म्यू टाइम्स डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डी वाई टाइम्स डी वाई, राइट, यही है ना, ये मेरा डिफ्यूजन नंबर है। तो डिफ्यूजन नंबर डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पर, आसानी हो जाएगी वहाँ पे हम लोगों को। और डिफ्यूजन नंबर का हम लोग को वो भी देखना है ना कि कैसे वो पॉइंट हाफ से ज़्यादा हो जाता है तो हमारा वैल्यूज़ जो है सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। डी मेरा डिफ्यूजन नंबर है, डिफ्यूजन नंबर। ओके, अब 4 से 5 मिनट में हम लोग इसको अब आर्ट्रेट कर लेंगे। सो यहाँ पर हम डी रखेंगे, डी मेरा डिफ्यूजन नंबर है, टाइम्स, ओके, टाइम्स हमारा क्या आ जाएगा, यू मेरा कौन सा था, i+1, सो i+1, ये पुराने टाइम स्टेप पे, ठीक है, ओल्ड है, -2 टाइम्स u ith नोड पे प्लस u i-1, राइट। आई थिंक हो गया है, इसको सप्रेस कर देंगे, ठीक है। ये मेरा क्यों हो रहा है, ओ एक और सेमीकोलन और ब्रैकेट आएगा, फाइन। अभी ये मेरा इटरेशन हो गया, राइट। अब हम फॉर लूप को एंड कर देंगे, ओके। उसके बाद हम बोलेंगे कि वाइल लूप से बाहर तब आना है जब मेरा एरर क्राइटेरिया हम रखेंगे। वो क्राइटेरिया क्या रखेंगे, ओल्ड वाला वेक्टर लेंगे और न्यू वाला वेक्टर लेंगे, उन दोनों को घटा के हम एब्सोल्युटली घटा के हम मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे, एक एरर का एक क्राइटेरिया रखेंगे। सो मतलब एरर कितना होने के बाद हम, मतलब व्हाट इज माय एरर, वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो वो लिखेंगे कि मैक्स ऑफ एब्सोल्यूट of these two vectors, which two vectors, u minus u new, that's it, okay। इन दोनों को घटा के जो भी एक आएगा वो मेरा एक एरर का एक पैरामीटर आएगा। अब बोलेंगे ये एरर ही मेरा पैरामीटर होगा, और वो जब मेरा 10⁻³ से कम हो जाए तो फिर निकल के आ जाओ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें फिगर प्लॉट करते हैं। अब आ गया मेरा, बस 2 मिनट और हो जाएगा, हमारा टाइम भी हो रहा है, ठीक है। फिगर 1, ओके, फिगर 1 में हम प्लॉट करेंगे, प्लॉट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यू न्यू को प्लॉट कराएंगे हमेशा, ठीक है। यू न्यू का सारा कॉलम को प्लॉट करा देंगे एक बार में। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट इट विथ वाई। व्हाट इज माई वाई, वाई आई हैव डिफाइंड और नॉट, वाई आई हैव नॉट डिफाइंड, ओके, वाई आई हैव नॉट डिफाइंड। सो वाई जो है मेरा वाई डोमेन, सो डी वाई तो मैंने डिफाइन किया बट वाई मैंने डिफाइन नहीं किया। सो लेट मी डिफाइन वाई डोमेन। वाई डोमेन इज लिनियर स्पेस, मैं एक लिनियर स्पेसिंग डोमेन बनाऊंगा, लिनियर स्पेस फ्रॉम 0 टू h तक हम मुझे जाना है, कितने नोड्स को लेके, तो कैपिटल N नोड्स को लेके। तो ये मेरा वाई डोमेन बन गया, ठीक है। और वाई डोमेन पे हम इसको प्लॉट करा देंगे, सो वाई कॉमा, अच्छा, और ये सब जो है एक तरीका है प्लॉट कराने का, ये सब प्रॉपर्टीज़ है कि कैसे हम प्लॉट कराना चाहते हैं, हम देखने में अच्छा लगे। मार्कर फेस, ये सब मैटलैब में हेल्प में जाएगा तो मिल जाएगा। मैटलैब मार्कर फेस कलर, मतलब फेस का कलर जो हम, मेरा डॉटेड लाइन होगा, जो मेरा फ्लूइड मॉलिक्यूल हम जो दिखाएंगे, जो मेरा ट्रैवर्स कर रहा होगा, वो उसका फेस कैसा दिखेगा वो हम डिफाइन कर रहे हैं, कलर्स वगैरह डिफाइन कर रहे हैं, ब्लू कलर से हम दिखाएंगे। और उसके बाद हम इसको सप्रेस कर देते हैं, एंड एक्स लेबल में मेरा यू वेलोसिटी रहेगी, और वाई लेबल में मेरा वाई डोमेन रहेगा, ऐसे डिफाइन करते हैं। दैट्स इट। सो प्रोबेबली वी आर रेडी टू गो इफ़ वी आर नॉट रॉन्ग। और एक एंड डालेंगे हम यहाँ पे, वाइल लूप को एंड कर देंगे, ठीक है। मेरा ये लूप तैयार हो गया। लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेट्स रन दिस।
सी, आर यू गाइस एबल टू सी इट? सी, अभी क्या हो रहा है, ऊपर वाला प्लेट Yes, जो sir. है 40 से मूव कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, ये धीरे धीरे सारे फ्लूइड मॉलिक्यूल्स को ड्रैग करेगा, और कब तक ड्रैग करेगा, जब तक कि ये सीधा नहीं हो जाए। ओके, अच्छा वो नहीं बताया, स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन हम दिखा ही नहीं आपको, हम भूल ही गए। ठीक है, वो हम 5 मिनट में भी बता देते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। सो इसको हम फिर से रन कराते हैं, एक बार फिर से रन कराते हैं। तो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। सो बॉटम प्लेट हमेशा 0 पे रहेगा, और टॉप प्लेट हमेशा 40 मीटर्स पर सेकंड पे रहेगा, और बीच वाले जो नोड्स हैं वो एक तरीके से पुल करेंगे, ये फ्लूइड प्रॉपर्टी है, एक तरीके से पुल करेंगे। सो फिर से मैं कराता हूँ रन इसको, एंड सी व्हाट हाउ दिस ब्यूटीफुली लुक्स। सी, वो ड्रैग कर रहा है, वो लेते जा रहा है। ठीक है, मेरे पास कुछ वीडियोस भी हैं, वो हम चला देते हैं तो वो और अच्छा दिखेगा। सो ऐसा कैपेबिलिटीज आप लोग को लाना है कोई भी सीएफडी करने में। मेरे पास कुछ वीडियोस भी हैं, लेट्स रन दैट। सर वो एंड में फ्लोट वाला दिखाई ना कोडिंग थोड़ा, क्या? मैटलैब में फ्लोट वाला जो कोडिंग था ना। हाँ, फिर से दिखाते हैं, 1 मिनट, हम आपको वीडियो ही दिखा देते हैं, उसका वीडियो है मेरे पास। ओके, तो इसमें क्या है, बॉटम प्लेट को मैंने मूव कराया था 40 से, और ऐसा कुछ दिखेगा। सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं इस तरीके से एडजस्ट होंगे, डिफ्यूज हो रहे हैं एक तरीके से। विस्कोसिटी है तो विस्कोसिटी में पुल करेगा, थोड़ा सा पुल होगा, नहीं होगा। इट्स अ बैलेंस बिटवीन पुल, इनर्शिया एंड विस्कस फोर्सेस। और लास्टली जाके जब स्टीडी स्टेट आएगा तो एक लीनियर प्रोफाइल दिखने लगेगा, जो कि हम क्विकली अभी आपको हम दिखा देते हैं कि कैसा मेरा एनालिटिकल सॉल्यूशन होगा। सो लेट मी अनशेयर दिस फ्रॉम हियर। और दोबारा देखना था या हो गया? नहीं सर, देखना एक बार। फ्लोट वाला दिखा दी। प्लॉट वाला, अच्छा प्लॉट वाला कोड देखना है आपको, फाइन, कोड देखना है, अच्छा ठीक है। प्लॉट वाला कोड ऐसा होगा। ठीक है, ये कोड हम शेयर कर देंगे आप लोग के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलिए, बोलिए। सर वो ऊपर जाइए तो सर थोड़ा सा। हाँ हाँ, सर ये एप्सिलॉन और ये एरर की डिफाइन किया सर। ओके हाँ। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हम अभी रुको जाओ, हमको यहाँ पे ये वाला शेयर करने दो, 1 मिनट, 1 सेकेंड। ओके, यहाँ पे हम आ जाते हैं। अभी मेरा ये स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। हाँ, अभी देखो, अभी होगा क्या ना, अभी यहाँ वाला चीज़ जो है 40 है, यहाँ वाला 0 है। ठीक है, ये वाला भी 0 है, ये वाला भी 0 है, ये वाला भी 0 है, ये वाला 0 0 0। ठीक है, ये मेरा nth टाइम स्टेप है, मतलब t इज इक्वल टू फर्स्ट टाइम स्टेप। t इज इक्वल टू सेकेंड टाइम स्टेप पे क्या होगा, ये सारे मॉलिक्यूल 0 0 0 0 रहेंगे, ये सारे 0 0 0 रहेंगे, लेकिन लास्ट वाला जो मॉलिक्यूल है थोड़ा सा उठ जाएगा। थर्ड टाइम स्टेप पे क्या होगा, सभी मॉलिक्यूल्स यहाँ रहेंगे, सेकंड लास्ट वाला मॉलिक्यूल थोड़ा और उठ जाएगा। तो बात यह है कि ये मॉलिक्यूल यहाँ पे इसको ड्रैग कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम स्टेप पे वो कितना ऊपर आएगा, ये इसको जानने के लिए वो, अब इसको ऐसे समझना होगा कि इसको हम कैसे समझाएं। मेरा जो नया यू है और मेरा जो पुराना यू है, एक्चुअली में जो जब नया यू को हम आइटरेट नहीं करेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे कि ये ओल्ड न्यू बन गया है, तो वैल्यूज मेरी जो है डिस्क्रिट वे में दिखेगी। ठीक है, वो एक कंटिन्यूस वे में दिखे, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम आइटरेट कराते हैं, और यू न्यू और यू ओल्ड को के बीच का एरर, के बीच का एक एब्सोल्यूट एरर हम देखते हैं। एब्सोल्यूट इसलिए देखते हैं क्योंकि यू न्यू जो है एक तरह का वेक्टर है मेरा। ठीक है, ये एक स्केलर नंबर नहीं है, ये भी एक वेक्टर है। ठीक है, तो
1 to 1 हम घटा रहे हैं, ठीक है, 1 to 1 सारे एलिमेंट्स को घटा रहे हैं, और उसके बाद भी मुझे एक वेक्टर मिला, पर इस वेक्टर में भी हमको एक नंबर चाहिए जो कि मैक्सिमम हो। सो लेट्स सपोज ऊपर वाला ही मैक्सिमम होगा मेरा, तो ऊपर वाला जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम है, और वो मेरा एरर हो जाएगा। अब ये एरर क्राइटेरिया बताएगा कि एरर जो है मेरा एप्सिलॉन से कितना छोटा बड़ा है। तो एरर हम स्टार्ट किए थे एरर 1 से, और अभी यहाँ पे एरर है 10 to the power -1, बट मेरा एप्सिलॉन जो है 10 to the power -3 था। तो बोला कि जब तक कि एरर तुम्हारा 10 to the power -3 नहीं हो जाए तब तक तुम घटाते रहो और तब तक तुम यू न्यू को एटरेट करते रहो, ठीक है। स्टार्ट मेरा एरर 1 से हुआ, अभी मेरा पहला टाइम स्टेप पे मेरा एरर 10 to the power -1 था, लेट्स सपोज, ठीक है। मतलब एरर अगर मेरा जितना ज़्यादा रहेगा मेरा सॉल्यूशन उतना डिस्क्रीट दिखेगा, ठीक है। तो हम इसको स्मूथनेस के लिए हम क्या करेंगे कि इसको छोटा करते जाएंगे एरर, कि मेरा एरर जो है सॉल्यूशन का जो एरर है नया और ओल्ड वैल्यूज़ में, ठीक है। नया वैल्यूज़ यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे ये 40 था तो ये 25 था, बट नया वैल्यू जो है 25.1 था, और नया वैल्यू 25.11 था। तो धीरे धीरे वो स्टेडी स्टेट की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब एक रियल सोल्यूशन, मतलब राइट सोल्यूशन की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो तब तक वो अप्रोच करते रहेगा जब तक हम ये आइटरेशन करते रहेंगे, और आइटरेशन कब तक करते रहेंगे, जब तक ये एरर वैल्यू एक थ्रेशोल्ड वैल्यू के नीचे ना आ जाए। यही चल रहा है यहाँ पे और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, अब क्विकली हम स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन, तो अभी हम देखें कि मेरा जो फ्लो है वो ऐसे ऐसे होके मेरा एक स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन पे आ रहा है फाइनली। सो स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन एनालिटिकली हम कैसे देख सकते हैं, क्विकली हम देखते हैं, अगर 2 मिनट हम मुझे देंगे तो हम क्विकली बता देते हैं। सो ये डॉ यू बाई डॉ टी है इज इक्वल टू न्यू टाइम्स डॉ टू यू बाई डॉ वाई स्क्वायर है। सो एट स्टेडी स्टेट डी यू बाई डी टी चला जाएगा जीरो, ये चेंज नहीं होगा टाइम के साथ। सो मेरा गवर्निंग इक्वेशन आ गया मेरा डॉ टू यू बाई डॉ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ओके, इसको इंटीग्रेट करते हैं पहली बार। सो डॉ यू बाई डॉ वाई इज इक्वल टू सी वन, नेक्स्ट बार फिर इंटीग्रेट करते हैं। सो यू इज इक्वल टू सी वन वाई प्लस सी टू, ये मेरा एक इक्वेशन मिल गया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मेरे पास बाउंड्री कंडीशंस है। बाउंड्री कंडीशंस क्या है, सो यू ऑफ जीरो एट ऑल द टाइम is equal to 0, u at h spacing at all the time is equal to 40। तो ये दो बाउंड्री कंडीशंस हम यहाँ डालेंगे। तो सबसे पहले ये वाला डालते हैं। सो 0 इज इक्वल टू c1 टाइम्स 0 प्लस c2, इसलिए c2 मेरा 0 हो गया, ठीक है। तो मेरा बचा u इज इक्वल टू c1y। ओके, अब ये वाला बाउंड्री कंडीशन यहाँ डालते हैं। सो u इज इक्वल टू 40 हो गया, इज इक्वल टू c1, और y इज इक्वल टू h था। सो h की वैल्यूज भी कुछ थी 0.04 मीटर्स। सो मेरा c1 क्या हो गया 40 बाई 0.04, वॉट एवर बी द वैल्यू हियर, प्रोबेबली 1000 है, फाइन, एनीथिंग। सो मेरा u एज अ फंक्शन ऑफ y, टाइम तो है ही नहीं, अब स्टेडी स्टेट है तो टाइम तो है ही नहीं, u एज अ फंक्शन ऑफ y मेरा क्या हो गया 1000y। और अगर इसको हम सिंपल केस में, अगर हम यहाँ पे u अपर प्लेट डिवाइडेड बाय लेंथ ये कर सकते हैं। तो ऐसा हम जेनरिक वे में लिख सकते हैं u y इज इक्वल टू u अपर प्लेट जिससे मूव कर रहा था डिवाइडेड बाय स्पेसिंग टाइम्स y। सो ये मेरा एक लीनियर प्रोफाइल की तरफ इशारा कर रहा है, ये लीनियर प्रोफाइल है, और ये वाला यही वो प्लॉट है जो कि एंड में आपको मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो एनी अदर डाउट, अगर और डाउट हो रहा है तो इसको हम लोग और डिस्कस करेंगे, अगर कोडिंग में और दिक्कत हो रही है तो। पर फिलहाल टाइम हो गया है तो मुझे छोड़ना होगा, ठीक है। एनीथिंग एल्स, आई मीन सर नो सर। कुछ और? हाँ बोलिए। सर ये जो लास्ट में हमने स्टेडी स्टेट वाला डिफाइन किया ना, हाँ, उसको अगर सर हाँ, डायरेक्ट हम रन कराते तो वो स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमको उसके अंदर, जो मूव हाँ, कर रहा हाँ, था उसकी जगह स्ट्रेट डायरेक्ट लाइन। करा लो, डायरेक्ट। हाँ, सी ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना,
ये वाला क्या है, ये जो इक्वेशन है तुम्हारा, ये स्ट्रेट लाइन ही तो है, वो डायरेक्ट ये फाइनल सोल्यूशन मिल जाएगा तुमको, डायरेक्ट प्लॉट कराओगे तो करेक्ट। और फाइनल सोल्यूशन, चूंकि हम एक्चुअली हम न्यूमेरिकली क्यों गए, क्योंकि हम ट्रांजिएंट सोल्यूशन भी देखना चाह रहे थे, ट्रांजिएंटली क्या हो रहा है टाइम के साथ, तो वो भी मुझे दिखा एक्चुअली है, जो कि हम एनालिटिकली बहुत मुश्किल है उसको डिराइव करना, ठीक है, जो कि एडवांस फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग देखे होंगे, ऑसिलेटिंग प्लेट्स और समथिंग समथिंग, तो एनालिटिकली हम लोग ट्राई किए थे, पर वो मुश्किल होता है, इसीलिए हम लोग CFD का हेल्प लेते हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, फिर अगर कोई और डाउट नहीं है तो फिर हम लोग मीटिंग